Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So, I make content and videos that focus on UGC NET GRF preparation, also focusing on MCOM, BCom, MBA, BBA students. These courses are also covered in my videos. So, हम कवर कर रहे थे यूनिट नंबर 10 entrepreneurship development of paper 2 management code 17 and we are just left with hardly 2-3 topics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is MSME. MSME, which stands for Micro, Small, Medium Enterprises. Let us quickly understand what it actually is. तो बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके जो एक्ट आई थी वो 2006 में एमएसएमई डी एक्ट है 2006 में आया है and this concept of MSME was first introduced by the government of India by implementing by bringing this act MSMED Act in 2006. तो कुल मिला के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ये एक्ट जो आई है बेसिकली स्मॉल छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उनको भी आगे प्रमोट करने के लिए ही ये स्पेशली एक्ट आई है बिकॉज इन इंडिया वी से दैट rich are always becoming richer but the poor are actually becoming poorer. So what about those businesses जो कि जिनको कोई तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या जो जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनके उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम। जो कि एमएसएमईडी एक्ट जब आया है तो उन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत सारे असिस्टेंस मिले उस एक्ट के थ्रू। तो एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो 2020 के पहले जो क्राइटेरिया था अब उसको हम पढ़ लेते हैं। ऑल द 20 ये अप्रैल 2025 में चीज़ें चेंज हुई है, ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है। तो अगर अभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको सारे क्राइटेरिया याद होने चाहिए बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क about the historical criteria and all the amendments which have been done. They could ask anything. So 2020 के पहले जो क्राइटेरिया था माइक्रो एंटरप्राइज को लेके था, the investment in plant and machinery or equipment for the micro enterprise, the limit was up to 25 lakh. अगर आपका investment in plant and machinery or equipment 25 lakhs के अंडर है and if you are into manufacturing or services sector, then you will be categorized as a micro enterprise. ऑल राइट, नाउ अगर यही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट होता है आपका मोर देन 25 lakhs but less than means up to 5 crore and sectors the same will be the sector manufacturing or services, so you will fall into small enterprise. Now again, if the investment is more than 5 crore and up to 10 crore and the sector will be the same either in manufacturing or services, you will be categorized as a medium enterprise. So you should remember this investment criteria that is always pre 2020 का ये criteria है. So remember this is very important for exam point of view. Now post 2020 जो amendment आया that is on 26 June 2020 में effective हो गया ये investment. तो उसके accordingly micro enterprise के लिए investment चाहिए हमें up to 1 crore and annual turnover should be up to 5 crore. Then you will be categorized as a micro enterprise. Then again, investment, if your investment is up to 10 crore and annual turnover is up to 50 crores, then you will be categorized as a small enterprise. Again, if more than 10 crore and up to 50 crore is your investment and annual turnover is more than 50 crore but up to 250 crore, you will be categorized as a medium enterprise. All right, now जैसे मैंने बताया अप्रैल 2025 में जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आया है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ रहता है एंड एनुअल टर्नओवर आपका अप टू 10 करोड़ है, तो यू विल फॉल इनटू माइक्रो एंटरप्राइज. अगेन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट जाता है 2.5 करोड़ से ज़्यादा एंड अप टू 25 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 100 करोड़ रहता है, तो यू विल फॉल इनटू स्मॉल एंटरप्राइज.
अगेन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अगर आपका 25 करोड़ से ज़्यादा अप टू 125 करोड़ है, एनुअल टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा एंड अप टू 500 करोड़ है, देन यू विल फॉल इनटू मीडियम एंटरप्राइज. Okay, so these are the criteria which are very very important. So let us proceed forward. Now we have some of the characteristics of SSI. तो small scale industries की कुछ characteristics we will be discussing. The first one is ownership. Obviously जितनी भी small scale industries होती हैं, जो main उनकी ownership ज़्यादातर single हाथ में रहती है, single ownership रहती है. Could be two or more people also, but generally it is rest in the hands of a single owner. Now, when we talk of the management, it is controlled with the owner or maybe owners. Then it is labor intensive because यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम एंड लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है. देन फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू बिगर एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की कंपैरिजन में ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है. मीन्स जैसे ही इन्वायरमेंटल कोई चेंजेस होंगे वी कुड easily adapt to those changes as compared to bigger industries. All right, the next one is limited reach. तो अगर हम रीच की बात करें तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो रीच है इट इज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉलर एरिया, स्मॉलर जोन ऑफ ऑपरेशंस. तो बहुत ज़्यादा जगह आपको नहीं देखने को मिलेगी. एज इन सिंपल सा मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक दो जग मतलब उनका जो रीच है वो स्मॉलर जोन में होगा. जैसे कि बड़ी बड़ी जो आपकी एंड कंपनीज होती हैं या बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो अपना एक्सपेंशन करते जाते हैं. बट यहाँ पे क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को भी उतना एक्सपैंड नहीं किया है. तो इनका जो जोन ऑफ ऑपरेशन है, जो रीच है, जो पहुंच है, वो कम जगह पे है. देन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. तो व्हेन वी टॉक ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, small scale industries are utilizing the local and the available resources, making their optimum utilization and producing their goods and services. Now let us talk of the role of SSIs in the Indian economy. तो जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रोल की बात करते हैं तो उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में. पहली चीज़ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट इट इज़ लेबर इंटेंसिव. तो क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं तो ऑब्वियसली दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जनरेट कर रहे हैं. देन टोटल प्रोडक्शन. तो करीब approximately 40% of the total production of goods and services are coming from small scale industries. तो उनका अच्छा खासा contribution है in the total production of India. काफ़ी ज़्यादा उनका भी contribution है. मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया स्कीम जब से आई है तो और एक बूस्ट अप मिला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. देन और मेक इन इंडिया को प्रमोट भी कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. तो कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट यूजिंग इम्पोर्टेड गुड्स यू शुड एक्चुअली involve yourself in make in India scheme. You only produce it and people should also use make in Indian products. So और ये अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी है तो वैसे वैसे लोग भी स्टार्टअप के लिए आगे आ रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं एंड लोगों का कंजम्पशन भी बिकॉज दे वांट टू यूज इंडियन प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स. तो ये चीज़ भी, ये अवेयरनेस भी काफ़ी बड़ी है. देन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और इन सारे आइटम्स में डील करती हैं और उनका बहुत सारा एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है. बहुत सारा प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के एक्सपोर्ट करते हैं. तो इंडिया का एक्सपोर्ट में भी एसएसआई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल. Then public welfare, obviously they have a big hand, they have an upper hand in generating employment and working for the welfare of the society. So obviously public welfare. Then they are actually acting as a seedbed for large scale industries. Small scale industries ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी
बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी। उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ करके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आगे आ सकती हैं, या उनको उनका ही प्रोडक्ट वो यूज़ करके अपने बड़े जो बिगर प्रोडक्ट है वो बना सकती हैं। सो इट एक्ट एज अ सीड बेड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लेट अस नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसएसआई। मेनली जो हमारे एसएसआई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इन तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज एंसिलरी, थर्ड वन इज सर्विस इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या है? दे एक्चुअली दोज इंडस्ट्रीज who manufacture finished goods for consumption और यूज्ड फर्दर इन प्रोसेसिंग। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फिनिश गुड मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो कि कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा या फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग में यूज होंगे, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। एग्जाम्पल हमारी जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, पावर लूम्स हैं, इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, एक्सेट्रा। नाउ एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? एंसिलरी इंडस्ट्रीज बेसिकली वो हैं जो कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स बना रहे हैं, जो कि फर्दर आगे मैन्युफैक्चरर उन्हें यूज करेंगे, दूसरे मैन्युफैक्चरर ने यूज करेंगे। तो दीज इंडस्ट्रीज एक्चुअली मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स फॉर द अदर मैन्युफैक्चरर्स. So these manufacturers then assemble the final product. So big companies manufacture finished goods, but they do not generally make all the part themselves. The vendors of such big companies are ancillary industries. Means जो बड़ी बड़ी companies हैं, जैसे कि ट्रक बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपका जो टायर है वो भी हम थोड़ी बनाएंगे, राइट? तो मैं अपने मेन कोर एरिया पे फोकस करूंगी, मैं उसको बनाने में आगे आऊंगी। तो मैं बाकी जो पार्ट्स होंगे वो मैं किसी अदर बाहर आउट से आउटसोर्स करूंगी। तो ये जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जो फर्दर आगे बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं असेंबल करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट, वही इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज। Then we have service industries. So service industries are not involved in any kind of manufacturing products. They provide services such as repair, maintenance and upkeep of the product after sales. तो service industry जो basically service में involve है, जैसे कि repair हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, वो इंडस्ट्रीज हो जाएंगी हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज। So apart from these three industries which we'll discuss, there are some other industries also counted under SSI. The first one is export unit. So any SSI is considered as an export unit when the exporting is more than 50% of its production. तो अगर आपका 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन को अगर आप एक्सपोर्ट करें, then you will be categorized as a export unit, जो again SSI में आएगा। So cottage units, these will be considered as SSIs when they do not involve a dedicated facility and are carried out within living spaces or houses of the owners. So units are considered as SSI जब वो कोई एक अलग से डेडिकेटेड फैसिलिटी को इन्वॉल्व नहीं करे हैं और कोई नॉर्मल लिविंग स्पेस में या ओनर के घर में ही वो यूनिट चल रही है, तब हम उस कॉटेज यूनिट को एसएसआई में कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज विलेज इंडस्ट्रीज। तो विलेज इंडस्ट्री को हम एसएसआई में तब कंसीडर करेंगे जब वो रूरल एरियाज में स्टैब्लिश की गई हैं एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो टिपिकली ये इंडस्ट्रीज जो है, दे डिपेंड मेनली ऑन लेबर, दैट इज ह्यूमन लेबर फॉर प्रोडक्शन. Now, apart from all these small scale industry, let us quickly have some example which are often seen in India, जो कि एसएसआई की बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारी बेकरी आप देखते हो, स्कूल स्टेशनरी हो गया, वाटर बॉटल्स की दुकान हो गया, लेदर बेल्ट्स की दुकान हो गए, स्मॉल टॉयज, पेपर बैग्स, फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर, स्पिनिंग एंड वीविंग, कोकोनट ऑयल मेकिंग, कैश्यू नट प्रोसेसिंग, क्ले प्रोडक्ट्स, अगरबत्ती मेकिंग, चॉक मेकिंग, बायोडीजल प्रोडक्शन, राइस मिल, toy making, honey processing, slippers making, detergent powder making, spices making, chocolate making, water bottle manufacturing, toothpick making, Xerox and printing, pickle manufacturing, incense stick manufacturing, paper plate manufacturing, candle manufacturing. ये बहुत सारे SSI आप ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे, हर गली में उधर उधर देखोगे, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं SSI के। ऑल राइट, now comes one important part, that is
द स्कीम्स विच आर प्रमोटिंग एमएसएमई। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं मार्केट में, जो कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्कीम्स हम इनमें से पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम जो है, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस for participation in international fairs, exhibitions and B2B meetings। तो ये जो भी हमारे इंटरनेशनल फेयर्स, एग्जीबिशन या B2B मीटिंग्स लगते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एमएसएमई सेक्टर जो है, उनकी बस की बात नहीं होती वहाँ पे इजीली जाना, तो उनको, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, तो फाइनेंशियल एड ये प्रोवाइड करते हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर भी इन सारी जगह पे पार्टिसिपेशन कर पाए, और उसको हम एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो अप टू 95% ऑफ द फेयर रेंट फॉर एग्जीबिशन स्टॉल्स इज रीइम्बर्स। तो अगर आपको स्टॉल्स वगैरह लगाने हैं एग्जीबिशन में, तो जो जो भी रेंट लग रहा है उसका 95% तक की इस स्कीम के अंडर रीइम्बर्स किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्शियल असिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ट्रैवलिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ऑलराइट, नेक्स्ट स्कीम आती है एटीआई, असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम जो है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, ईडीपीज एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ये फाइनेंशियल एड, ग्रांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही है, ताकि ये इजीली वर्कशॉप्स को, ईडीपीज को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर पाए। द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग असिस्टेंस। तो मार्केटिंग असिस्टेंस में पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। Then subsidies also provided on rent for exhibition stalls. Apart from that, assistance for is provided for branding, packaging and marketing research. And then there is support provided through e-commerce platforms and marketing networks. So this is the marketing assistance provided under various schemes through for promoting this MSME sector. Apart from that, the next scheme is CGTMSE. फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और किस लिए है ये स्कीम, इतना एटलीस्ट यू शुड नो। सो द नेक्स्ट स्कीम इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम, CGTMSE। तो ये स्कीम बेसिकली कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है अप टू 2 करोड़ टू एलिजिबल MSMEs, enabling them to access credit without pledging any security. So this scheme is contributed by Government of India and SIDBI. तो स्कीम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो स्कीम है, ये दोनों ने मिलके बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ये मेनली क्या कर रही है, 2 करोड़, 2 करोड़ के अंदर के ये लोन्स इजीली प्रोवाइड करिए, एंड दैट टू ये लोन्स कैसे हैं, कोलैटरल फ्री, मींस यहाँ पे आपको कोई भी प्लेज मींस सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी को प्लेज करने की नीड नहीं है, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की नीड नहीं है। तो वो वाले लोन्स ये अप टू 2 करोड़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CLCSS। तो नेक्स्ट स्कीम का फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे इट फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बाय प्रमोटिंग द परचेज ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस मशीनरी। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को फैसिलिटेट कर रही है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में, कैसे, बाय परचेज ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस मशीनरी, and 15% capital subsidy on the cost of approved plant and machinery। तो on the जो भी plant and machinery की cost है उस पे 15% capital subsidies provided। apart from that, again very important कि ये जो स्कीम्स, सॉरी, ये MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनको ऑब्वियसली इनको भी सर्टिफिकेशंस की नीड होती है।
राइट। जो भी हम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस लेते हैं, जैसे ISO 9000 जो कि कंसिस्टेंट क्वालिटी से रिलेटेड है, ISO 14001 जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है, HACCP जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये सारे जब हम सर्टिफिकेशंस के लिए जाएंगे तो अगेन हमको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ये CLCSS स्कीम, it also supports compliance with quality, environmental and safety standards such as ISO 9000, 14001 and HACCP by covering up to 75% of the expenditure required to acquire these certifications subject to a maximum of 75,000 each. Means अगर आपको ये भी, जब भी आप ये सर्टिफिकेशंस लेने को जाते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आता है उसका 75% तक का ये कवर करती है स्कीम, या फिर 75,000 एक सर्टिफिकेशन के केस में जो भी मैक्सिमम है वो उतना वो बियर करेगी ये स्कीम। देन नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द MSME, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है अंडर MSME स्कीम। तो इट इज established in 1955। so what it does, it provides financial assistance, marketing support, technology transfer, skill development, and infrastructure such as industrial estates, tool rooms, and testing centers. So by offering these services, NSIC enhances the competitiveness, market access, and employment generation of MSMEs, helping them grow sustainably in both domestic and international markets. Okay, so the next scheme is Pradhan Mantri Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP. Basically, it is a credit linked subsidy scheme which was launched in 2008, और इट इज़ एक्चुअली ये दो स्कीम्स का मर्जर है। पहले जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलती थी और राष्ट्रीय महिला कोष, इन दोनों का मर्ज करके ये स्कीम आई है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर। ऑलराइट, apart from all the schemes which we have discussed, let's discuss these also. The Khadi and Village Industries, KVIs, and Core Industries. So these are actually important segment hai of India's micro, small and medium enterprise sector. So the focus mainly is on rural development, employment generation, and promoting traditional crafts while supporting self-employment and entrepreneurship. तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कोर इंडस्ट्रीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं MSME सेक्टर के अंडर, और इनका मेन फोकस रहता है रूरल डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, साथ साइमल्टेनियसली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है इस पर्टिकुलर की, दैट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इम्पॉर्टेंट। ओके, it is established under an act of parliament in 1956. It implements development programs. The next is entrepreneurship and skill development programs. तो बहुत सारे entrepreneurship को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम्स, EDPs, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से कराए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को हम नर्चर कर सकें, we could improve the technical skill, we could foster the MSME growth. So these programs focus on training, mentorship, credit link support to enable self-employment, innovation, and rural industrialization, thereby contributing to economic development and employment generation. The last one is infrastructure development programs. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएँ. So these are government supported initiatives aimed at strengthening the MSME growth by providing industrial estates, technology centers, cluster development, common facility centers, export infrastructure. So these initiatives enhance productivity, reduce costs, facilitate technology adoption, and support entrepreneurship. So we have discussed the various schemes under MSME. We discussed what is MSME, what is its criteria. We discussed the characteristics of MSME.
We discuss the role of MSME in boosting the Indian economy. We discuss various classification of MSME, and we discuss the various schemes that promote MSME. So that's it for today, and I hope you would have understood. And if you have any doubt, please post it in the comment section. And if you want a specific lecture, you want me to make a video on any specific topic, then please post it that too also in the comment section. Thank you so much for watching. And yes, in the next video of Entrepreneurship Development Unit, we will be covering the various financial institutions that are promoting, that are helping the MSME sector, which again will be a very, very important topic. So do not miss that lecture. And by the end of that lecture, we will be covering the Unit 10 Entrepreneurship Development fully. So thank you so much for watching. एंड येस अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.